हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को नया टॉपिक नंबर सिस्टम, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए फर्स्ट हम लोग को नंबर को क्लासीफाई करें। नंबर 2 टाइप्स होता है। क्या होता है नंबर 2 टाइप। एक है रियल नंबर और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तुम लोग को है ही नहीं, तो नाउ रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग क्लासीफाई करें तो रियल नंबर 2 टाइप्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज द नंबर which you can represent p by q form by a by b form. That means q equal to a by b, which is simplest form. A simplest form means जैसे for example 3 by 5, मतलब the factor of numerator and denominator must be 1 and b not equal to 0. और रैशनल नंबर क्या हो सकता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स z से डिनोटेड होता है। इंटीजर्स होता है नेगेटिव में -1, -2, -3, 0 न्यूट्रल, 1, 2, 3 लाइक दिस। एंड होल नंबर ऑल्सो भी हम लोग को रैशनल नंबर। तो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? n से। तो हम लोग को होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो है उसको रैशनल नंबर जो बोला, उसमें देखो सपोज 2 इज अ नंबर which is whole number and rational number both। तो 2 को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 by 1, that means it is a fractional form। तो so it is also a rational number। whole number, natural number, integers, they all are rational number। and irrational number is the number which is denoted as q bar, which is not rational, that means which number you cannot represent as p by q form। so this is irrational number। next rational number, irrational number। देखो rational number are the number which can be expressed as a fraction and also as positive numbers, negative numbers and 0। natural numbers, whole numbers, they are also rational number, and any fractional number like -2 by 3, -5 by 7, they also rational number। it can be written as p by q form where q not equal to 0। irrational number, the number which are not rational numbers and are called irrational numbers। irrational numbers could be written in decimal but not in the form of fraction। irrational number you cannot express as p by q form, that means in the form of fraction, which means they cannot be written as the ratio of 2। it will be it can be decimal form like 0 point। irrational number means 0.1010001 like dot dot dot, that means non-terminating and non-repeating। non-terminating and non-repeating। non-terminating मतलब इसका एंड नहीं होता है, एंड non-repeating मीन्स ये रिपीट नहीं होता है, मतलब non-repeating और non-recurring। and rational number you represent as p by q form। 3 by 2 is rational number, it means integer 3 is divided by any another integers, that is 2। now whole numbers include all natural numbers along with 0, that means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, they all are whole numbers। whole numbers denoted by w। what is natural number? natural number, these are counting numbers that begins from 1 and continue infinity, that means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dot dot dot। it represent as n, capital N। integers, what is integers? integers consist of negative numbers, positive numbers and 0 excluding fractions, that means this is negative integers, this is positive integers and 0 is neutral, which is represented by denoted by capital Z।
Next, real numbers and its decimal expression. Real numbers can have different types of decimal expansion based on whether the remainder becomes 0 or not. That means हम लोग टू टाइप्स डेसिमल होता है क्या ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स सपोज 7/8 इधर लिया तो डिनोमिनेटर 8 है, तो 8 है तो हम लोग को विदाउट एक्चुअल डिविजन में भी हम लोग फाइंड कर सकता है कैसे ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है. द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर 2 and 5 होगा तो तब वो टर्मिनेटिंग होता है. तो इधर क्या है 7/8, 8 का फैक्टर क्या है 2 क्यूब इंटू 5⁻0, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग. तो इसको हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग को आएगा 0.875. टर्मिनेटिंग मीन्स एंड हो जाता है जो डेसिमल, मतलब रिमाइंडर नहीं रहता है. where the remainder becomes 0 after a few steps. And non-terminating decimal means if the remainder never becomes 0, the decimal expansion is termed non-terminating. Example, non-terminating 1/3, तो डिवाइड करो तो 0.0, 3 3s are 9, 1 0, 3 3s are 9, दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यू चलेगा. तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग टू टाइप्स होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स जो तुम्हारा ऐसे चलते मतलब रिपीट होता है, दैट मीन्स रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, दैट मीन्स 0.3 बार और ऐसे भी हम लोग लिखते हैं 0.3 डॉट, ये सब सेम मीनिंग है. तो टर्मिनेटिंग मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मीन्स दिस नंबर्स रिपीट द सेम वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट endlessly. For instance, 1/11 equals to 0.9, 0.9, 0.9 and so on, where the digit 0.9 keep repeating indefinitely. And non-terminating, non-recurring means these numbers do not repeat the same sequence of digit after the decimal point and the remainder never becomes 0. A classic example is the value of pi. Pi is irrational number which is approximately 3.141592653589979. That means no continuation, numbers कोई same repetition नहीं हो रहा है, where the digit continue indefinitely without repeating in a predictable pattern, कोई pattern follow नहीं करता है. तो ये करने के पहले देखो जैसे हम लोग को नंबर में लिखा था तो नंबर में हम लोग को रियल नंबर, तो रियल नंबर में हम लोग रैशनल इरेशनल लिखा था, रैशनल इरेशनल. तो रैशनल होता है क्या, रैशनल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोथ होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है. नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो मस्ट बी रिपीटिंग, मस्ट बी रिपीटिंग एंड irrational number non terminating non repeating, non terminating non repeating. Okay, now represent real number on number line. So how to find in a number line 5.422. now we draw 5 and 6 because इधर देखो तुम्हारा 5.4 दैट मीन्स 5 and 6 के बीचों में हम लोग को 10 पार्ट्स कर लेता है. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.8, 5.9, this is 6. इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना है तो नाउ 5.4, 5.4 कहाँ है, इधर है 5.4. नाउ 5.4 एंड 5.5 को हम लोग ले लेता है तो इसमें फिर 10 पार्ट्स, तो इस
तो 5.4 एंड 5.5 को फिर 10 पार्ट्स करना है। तो 5.4 दिस इज 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59 and 5.6. now 5.42 इधर लोकेट है, तो 5.4 एंड 5.43 फिर 10 डिविजन्स करना है। तो 10 डिवीजन करो 5.42 एंड 5.43 के बीचों में। तो 5.421, 5.422, 5.423, 5.424, 5.425, 5.526, 5.527, 5.528, 5.529. now 5.422 means this is the required point। तो इस टाइप में तुम लोग को लोकेट करना है, मतलब 2-3 स्टेप्स में तुम लोग को करना है। जितना तुम्हारा डेसिमल होगा उतना तुम्हारा स्टेप में से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर इन्वॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। दैट मीन्स रैशनल कोई भी दो ठो नंबर लो, 2 इज रैशनल नंबर, 2 + 2/3 तुम ये इसको प्लस करो तो इसमें देखो तुम्हारा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर हम लोग को रैशनल आता है। तो हम लोग को रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल गिव्स रैशनल। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दो ठो टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल नंबर। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। देखो इधर एक हम इरेशनल नंबर लिया, जैसे 2 + √3, 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है, एंड 2 - √3। तो सम ऑफ दिस टू इरेशनल नंबर, देखो 2 + 3 + 2 - √3, तो इसको सम करो 2 + √3 + 2 - √3, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2 + 2 4 विच इज रैशनल। तो इरेशनल प्लस इरेशनल इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, इट कैन बी रैशनल ऑल्सो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज रैशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, इसमें देखो वो नंबर ही ले लेता है, 2 + √3 इज इरेशनल नंबर एंड 2 - √3 ऑल्सो इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। तो इसमें देखो a + b, a - b, a² - b², तो 2² - √3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 - 3, दैट मीन्स 1 which is rational। तो इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल आ गया। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट, फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो ऐसे एग्जाम आता है एग्जाम में, तो 5 and 6 के अंदर में हम लोग को 5 ठो रैशनल नंबर्स लिखने बोला। तो 5 and 6 तुम लोग लिख लो, 5 and 6। तो 5 मीन्स 5/1 एंड 6/1। 5 रैशनल नंबर मीन्स इंटू 6 करो अप एंड डाउन में, और इधर से भी 6 करो मल्टीप्लाई। तो इसमें 5 × 6 = 30/6, दिस इज 36/6। देखो इसके अंदर में आ जाएगा हम लोग को 31/6 < 32/6, 33/6, 34/6, 35/6। तो हो गया हम लोग को अंदर में 5 ठो रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6।